And thank you, Tushar. Thank you for your kind words and wonderful introduction. I'm so blessed to have you in my team. And definitely each one of my team, they are also playing instrumental role in all my tasks, in all my creatives, in all my efforts. So एक बार जबरदस्त तालियां आप सबके लिए जो आज यहाँ हैं और मेरी टीम के लिए. I'm glad to be a part of this team. Thank you very much. Thank you, darling. Thank you. So, मेरे बारे में तो सबने जान ही लिया और आज जो लोग यहाँ मेरे साथ जुड़े हैं मोस्टली वो मुझे पहले से पहचानते भी हैं, जानते भी हैं. जरूरी ये है कि हम ये जानें कि आज हम क्या करने वाले. सो आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत बहुत अहम है और मैं शुरू करने से पहले आप सबका परवरिश की पाठशाला में जो है वो स्वागत करना चाहूंगी. Just give me a second. I need to fix some view. Yes. May I ask Priyanka Agarwal to mute herself, please? Yes, thank you so much. Thank you. Tushar, can we set to host video only on the screen, on my screen? Yes, ma'am, sure. Yeah, pin karte. Yes. Okay, so परवरिश की पाठशाला में आप सबका स्वागत है. Thank you for giving your time and attention to the most concerned topic of the day, I would say. I am not here to teach and preach you such me, because my dear friends, seriously, I completely get that parenting practices around the world, they share three major goals: ensuring children's health and safety, preparing children for life as productive adults, and transmitting cultural values to our further future generations. And every parent is doing hard, investing their best. But I also experienced that raising kids can be a very, very stressful experience, especially when they are behaving differently. They start misbehaving, or their behaviors are not in align or sync with our own expectation or our own family norms. On daily basis, being a psychologist, being a counselor, I'm serving across the globe since last 31 years in different professional capacities. But parents, they are sharing so scary experiences these days. And I'm finding that it is very common for children to act out and throw tantrums from time to time. But this behavior can sometimes be very, very dangerous, risky, or unhealthy for them. Them matlab for children as well as society, as well as nation on the large. But this behavior is not their intention, that I can assure you. आज मैं आप सबके मन से एक बहुत बड़ा भारी पत्थर उतारने वाली हूँ कि हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल गए, या फिर हमने जो संस्कार दिए वो हमारे बच्चे अडेप्ट नहीं कर पा रहे या फॉलो नहीं कर पा रहे. सॉरी, ऐसा नहीं है. This behavior can sometimes be caused underlying condition or could be a symptom of some behavioral disorder which can be managed, which can be addressed, which can be treated. तो आज का जो हमारा ये मुद्दा है बात करने का वो यही है कि हम मिलके सॉल्यूशंस पे बात कर सकें. सो आज का जो हमारा ये पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, बीइंग एन अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस सेशन, रेमेडीज और सॉल्यूशंस पे हम पार्ट 2 में बात करेंगे 10th अप्रैल को, मंडे. बिकॉज बहुत लंबा सेशन करने की बजाय मुझे लगा इसे इंटरैक्टिव रखना बहुत जरूरी है. तो जैसे तुषार जी ने ऑलरेडी बता दिया है कुछ गाइडलाइंस आज की इस रूम की, कि आप अपना जो माइक है वो ऑफ रखेंगे, वीडियो ऑन रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. बिकॉज आप लोगों की स्माइल, आप लोगों का ग्लो, आप लोगों की क्यूरियस फेसेस,
जो है वो हमारे लिए एक डोज हैं, मोटिवेशनल फोर्स हैं। एंड सेकेंडली, आप अपने क्वेश्चन साथ साथ नोट करते रहिए। एट द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन वी विल कीप ए क्वेश्चन आंसर सेशन, और पूरी डिटेल में आप सबकी क्वेरीज आंसर की जाएंगी। आपके जो फर्दर कंसर्न है वो भी लिए जाएंगे ताकि उसे हम पार्ट 2 में डाल सकें। अगर आप कोई पर्टिकुलर बिहेवियरल इश्यूज डिस्कस करना चाहते हो बच्चों से रिलेटेड, बीइंग ए पेरेंट, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए कोच, तो मोस्ट वेलकम, वी विल डेफिनेटली आंसर दैट दोज आल्सो। कोशिश करिएगा इस इंफॉर्मेशन को अपने तक ना रखिएगा। इस इंफॉर्मेशन को अपनी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जहां तक भी आप पहुंचा सके, जितने पेरेंट्स की आप हेल्प कर सके, जितने पेरेंट्स को आप एजुकेट, एम्पावर और नर्चर कर सके, जितने पेरेंट्स को आप थोड़ा रिलीफ कर सके, तो जरूर मेरा हाथ बटाइएगा। बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग एज ए टीम। हम सब लोग एक टीम का हिस्सा हैं। यहाँ कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी मेंटोर नहीं है। सो आई एम जस्ट वन ऑफ यू। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने अपनी लाइफ के पेरेंटिंग एक्सपीरियंसेस को एक करिकुलम में शेप करके उसे पेरेंटिंग की पाठशाला में डाल दिया, और एज ए कोच, एज ए पेरेंटिंग कोच, एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए काउंसलर, जितने और पेरेंट्स के इश्यूज मेरे साथ साझा होते हैं उनको मैंने अपने हर वेबिनार में, हर सेशन में, हर वीडियो में डालने की कोशिश की है, नथिंग एल्स। सो जैसा मैंने बताया कि आई एम सर्विंग अक्रॉस द ग्लोब सिंस 1991, तो ये जो मोर देन 3 डेकेड्स का मेरा सफर है उसमें पेरेंट्स ने मेरे साथ हर दौर के अलग अलग सवाल और इश्यूज शेयर किए हैं। हम इस वक्त 4th जनरेशन सर्व कर रहे हैं अपनी इस कैपेसिटी में, बीइंग ए काउंसलर एंड साइकोलॉजिस्ट। और जो पेरेंट्स कॉमनली बताते हैं कि कौन कौन से जनरल इश्यूज हैं जो बच्चों की बिहेवियर में ट्रबलसम होते हैं, फिर भी कई बार बहुत सारे पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली उन बच्चों का बिहेवियर एबनॉर्मल है तो कहाँ है, क्यों है। तो आज चेक करेंगे सबसे पहले कि कॉमन इंडिकेटर्स बिहेवियरल इश्यूज, बिहेवियरल मिसमैनेजमेंट या फिर बिहेवियरल डिसऑर्डर के क्या होते हैं। एक तो होता है फ्रीक्वेंट आउटबर्स्ट। कोई भी एज हो, कोई भी स्टेज हो, बच्चा जब अपने इमोशंस को रेगुलेट ना कर पाए, वो छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करने लगे, लैशबैक करने लगे, और वो बिना देखे कि जगह क्या है, लोग क्या है, कैपेसिटी क्या है, किसी पर्सन की अथॉरिटी क्या है, तो उस वक्त जरूर ये इंडिकेटर है। बहुत छोटी छोटी चीजें बच्चे को बॉदर करने लगे, किसी गेम में गेम लूज कर जाना, किसी बच्चे का कुछ मजाक कर देना, किसी बड़े की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर देना, कभी उसके परफॉर्मेंस पे छोटा सा रिमार्क कर देना, व्हाटएवर। उनको अपनी किसी भी चीज को लेके इमोशंस को मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। बच्चा कई बार बहुत इंपल्सिव हो जाता है। यहाँ मैं बच्चा वर्ड यूज कर रही हूँ, बट एज रेंज कैन बी अप टू 20 ईयर्स। ओके, जब तक बच्चे जो है एडोलेसेंस से एडल्टहुड में नहीं चले जाते, तो आजकल तो मैं एडल्ट्स को भी बच्चा ही समझ रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी स्क्रीन एडिक्शन की बात आती है तो हम सब लोग बात करते हैं बच्चे बहुत स्क्रीन एडिक्टेड हो गए हैं, बच्चे तो चिपके रहते हैं टैब से और फोन से। देन आई वंडर कि हम एडल्ट्स क्या नहीं ऐसा कर रहे, एंड समवेयर समहाउ वी आर वर्सन देन किड्स। बच्चों को तो फिर भी स्कूल जाना पड़ता है, बच्चों को होमवर्क करना पड़ता है, बच्चों को खेलना पड़ता है। हम तो किचन में, हम तो कहीं भी फोन के साथ ही ग्लूड हैं। वर्कप्लेस पे आई हैव सीन पीपल ग्लूड टू देयर स्क्रीन in spite of the fact that they have been expected to perform in their roles and responsibilities. So adults are none less than kids these days in so many disorders, अगर मैं कहूँ। तो जब हम impulsive हो जाते हैं, hitting, throwing, screaming, shouting and lashing back on minor things or major things, तब भी एक इंडिकेटर है कि बच्चे में behavioral issues आ रहे हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, completely in contrast, when any child gets silent. Otherwise that child is very talkative, bubbly and social and very naughty, but immediately और अचानक से वो silent हो जाता है। कभी कभी बोले तो हमेशा irritate करता है, और he or she is rude for no reason। बहुत सारा खतरा अलार्मिंग होने लगता है जब बच्चा झूठ बोलने लगे। कई बार स्टीलिंग
और ऐसी चीजें भी उसके जो स्टॉक में पाई जाती हैं जो उससे बिलोंग नहीं करती। और जब आप पूछते हैं पेरेंट्स तो उसके पास बहुत सारे अनकन्वेंशनल रीजंस होते हैं जो आपको कन्विंस नहीं कर पाते। इफ बिहेवियर स्टार्ट्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस एट स्कूल, वो बिहेवियर जो बच्चे की परफॉर्मेंस को ड्रॉप करे, फॉर एग्जाम्पल being on social media most of the time, being addicted to some games or any kind of screen addiction, और जिसकी वजह से ऐसी distraction है, maybe using some substance abuse, something getting into wrong peer group and adapting some habits, जिसकी वजह से उसका focus, उसकी attention अपनी academic से हट जाती है। डिसएग्रीमेंट्स अपने पीयर ग्रुप के साथ ज्यादा होने लगे हैं, इधर ऑन प्लेग्राउंड और इन स्कूल, इन क्लासरूम और एट फैमिली गेट टुगेदर्स, सोशल गैदरिंग्स में वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ गेट अलोंग नहीं कर पाता है और उसकी सोशल लाइफ इसकी वजह से हर्ट और हैम्पर हो रही है। वो या तो लेजी हो गया है, रेस्टलेस हो गया है, डिसओरिएंटेड, डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया है, जिसकी वजह से वो अपनी इंपॉर्टेंट चीजों पे, टास्क पे, परफॉर्मेंस पे, एक्टिविटीज पे, गेम्स पे फोकस नहीं कर पा रहा है। बहुत बड़ा मेजर कंसर्न कोविड के बाद से अब तक लगातार जो मुझे आ रहा है पेरेंट्स की तरफ से, ट्रस्ट मी, स्टार्टिंग फ्रॉम द एज 7-8 years, के बच्चे एडल्ट कंटेंट देखने लगे हैं, डिस्कस करने लगे हैं, दे आर क्यूरियस अबाउट सेक्सुअल डिस्कशंस। This is not bad at all, what I believe, but if it is not coming from the right source, coming in the right intention, and they are not in the wrong scenarios, okay? तो recent example मैं आपको बताती हूँ, एक मदर ने मेरे साथ शेयर किया एक बच्चे के बारे में कि बस में, क्योंकि बस या एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है स्कूल का जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंट एज कैटेगरीज के बच्चे होते हैं, जिनके जो स्टॉप्स हैं बेसिकली वो कॉमन वे पे होते हैं, स्कूल टू होम। उसमें बहुत सारे बच्चे कई बार बहुत जिसको हम कह देते हैं कि मीनिंगलेस या फिर इनएप्रोप्रिएट कंटेंट डिस्कस करते हैं आपस में, जिसमें छोटे बच्चे भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, सुन रहे हैं, एंड दे कैच वर्ड्स फ्रॉम देम कि व्हाट दोज टीनेजर्स और एडोलेसेंट ग्रुप इज शेयरिंग। तो एक 8-10 साल के बच्चे के दिमाग पे उन चीजों का क्या असर होता है, वो मैं आज उन पेरेंट्स के साथ, बच्चे के साथ डिस्कस करके उनको हील कर रही हूँ। सो ये बहुत बड़ा एक इशू है कि नॉट अप्रोप्रिएट फॉर देयर एज, जब वो टॉपिक डिस्कस करने लगे तो ये बड़ा अलार्मिंग साइन होता है। जब बच्चा आपकी इंस्ट्रक्शंस को ही क्वेश्चन करने लगे, डिसिप्लिनरी एक्शन को निगेट करने लगे, वो रिबेलियस साउंड करे, तब भी एक इंडिकेशन है कि he is getting out of track or she is getting out of track. एक और बहुत मेजर कंसर्न जो मुझे दिख रहा है और मुझे शेयर कर रहे हैं पेरेंट्स, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ बच्चों में, वो है नॉन सुसाइडल सेल्फ हार्म, कि बच्चा खुद को छोटी छोटी हार्मफुल चीजों से हार्म कर रहा है, ब्लेड से कट करना, किसी पिन से पॉइंट करना, कुछ अपने आप को किसी भी तरह से इस तरह से हार्म करने की कोशिश करना, जिससे ये लगता है कि पेरेंट की अटेंशन चाहिए, किसी की अटेंशन चाहिए। नो, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट अटेंशन सीकिंग, इट इज अबाउट सप्रेसिंग देयर इमोशनल पेन, जिसकी वजह से वो फिजिकल पेन अपने आप को देना चाहते हैं। ये भी एक बहुत मेजर कॉज ऑफ वरी है for parents, for educationists, for counselors, psychologists, and we adults as a responsible part of this society and nation. तो ये जितने भी साइंस हैं ये एक्चुअली मेरे साथ अलग अलग पेरेंट्स ने डिस्कस किए, जिनके बच्चे सफर कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, जिन्हें बहुत ही पॉजिटिव अटेंशन, लव और केयर के साथ हैंडल करे जाना चाहिए, जबकि ज्यादातर हम नेगेटिव सिनेरियोज का शिकार हो जाते हैं, coming back to punishments, harshness, discipline और over control, over nagging, plus over जो एक helicopter parenting होती है। Yes, helicopter parenting से याद आया कि आज के सेशन के बाद आप जब मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करेंगे ना उसके बाद आपको मिलेगा एक बहुत ही बढ़िया कोर्स कंटेंट
जिसमें हम आपको बताएंगे पेरेंटिंग स्टाइल्स क्या होते हैं, मेजर एंड इम्पॉर्टेंट, और हर पेरेंटिंग स्टाइल का बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ता है वो शेयर किया जाएगा रिसोर्स आप लोगों के साथ। और साथ ही एक वर्कशीट भी दी जाएगी जिसमें आप अपने बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं, खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई योर इमोशंस और ट्रिगर्स कि आप कब क्या फील कर रहे हो। दैट इज ए वेरी गुड वर्कशीट क्रिएटेड बाय मी। सो अब ये रिसोर्सेज आप हमेशा सोचेंगे कि लास्ट वेबिनार में भी मैम ने कंडीशन रख दी थी कि फीडबैक शेयर करेंगे तभी, क्योंकि यू नो जब आप डिजर्व करते हो ना कोई चीज तो उसकी वैल्यू मल्टीपल हो जाती है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ पहले एक्शन लूं, कोई टास्क करूं, कुछ मैं डिफरेंट करूं पहले और फिर मुझे कोई चीज मिले। अदरवाइज इंटरनेट पे तो सब कुछ है ही है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक पर्सनल अटैचमेंट, ये पर्सनल बिलोंगिंगनेस का जो है वो एहसास करवाता है। एंड दैट इज सो गुड इन दिस सेल्फ सेंटर्ड conditional and rude word, you know. Yes. तो जितने भी इंडिकेटर्स हमने अभी डिस्कस किए वो होते हैं तो क्यों होते हैं, ऐसा क्यों होता है? हर पेरेंट का ये सवाल है कि मैम हमने तो इतनी अच्छी परवरिश की, हम तो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और आजकल तो सच में मैं पेरेंट्स का स्ट्रगल इतना ज्यादा एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि मुझे कई बार लगने लग जाता है कि मैंने तो अपनी पेरेंटिंग बड़ी जो स्ट्रिक्ट की है। इतने कंफर्टेबल, इतने एडजस्टिंग, इतने अंडरस्टैंडिंग, इतने सपोर्टिव पेरेंट्स हैं, फिर भी बच्चे जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं प्रॉब्लम बिहेवियर से। प्रॉब्लम बिहेवियर क्यों हो रहा है, इससे पहले वो एक्सप्रेस क्यों हो रहा है, वो बच्चों में झलक क्यों रहा है, उसके कई कारण हैं कि बच्चे अपना इम्पल्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी इमोशंस का सेल्फ रेगुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, दे लैक स्किल्स इन इमोशनल रेगुलेशन, जो टॉपिक हम अगले सेकेंड पार्ट के बाद नेक्स्ट वेबिनार के लिए चुनने वाले हैं, जिसको मैक्सिमम वोट्स मिले इस टॉपिक के बाद। उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम से घबरा रहे हैं, उनका ग्रेटिफिकेशन डिले हो रहा है, इंस्टेंट उनको कोई जो एक पॉजिटिव सिनेरियो नहीं दिखता है, वो नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं अपनी सिचुएशंस के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ और अपनी इमोशंस के साथ, वो अपनी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे विशेष नीड्स एडल्ट्स को प्रॉपर तरीके से। ये दिखाता है कि उन्हें नहीं पता कि वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या अप्रोप्रिएट है और क्या उनसे एक्सपेक्टेड है। इसका मतलब कुछ भी वो इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, दे आर लैकिंग समवेयर डाउन द लाइन। मैं ये नहीं कहूंगी कि पेरेंट्स की नेग्लिजेंस या लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से, कई बार एनवायरमेंटल सोर्सेज ट्रिगर्स इस तरह से होते हैं कि जाने अनजाने बच्चा कुछ चीजें मिस कर जाता है या हम कई चीजों में थोड़ा सा लैग हो जाते हैं। तो डरने की बात नहीं है। बेसिकली कभी भी ये मत सोचिए कि प्रॉब्लम क्यों आई, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन खुशी की बात पता है क्या है कि बच्चे सॉरी जब भी कोई प्रॉब्लम आती है वो अपने साथ सोल्यूशन भी लाती है। हमारा ध्यान प्रॉब्लम की बजाय अगर सोल्यूशन पे रहेगा तो डेफिनेटली वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। और जब बच्चों में रेगुलर इमोशनल आउटबर्स्ट होते रहें, ये एक साइन है कि दे हैव येट नॉट डेवलप्ड दोस स्किल्स they need to cope up with feelings like frustration, anxiety, anger. So handling big emotions in a healthy, mature way requires a variety of skills जो यहाँ मैंने आपके साथ शेयर किए, और यही skills missing होते हैं। कुछ बच्चे जो हैं they seem to struggle with boundaries and following rules. वो rules नहीं follow करना चाहते, वो rules लेना ही नहीं चाहते actually. They may be defined, they may ignore instructions or try to talk their way out of things that are not optional. आपके लिए वो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं है, लेकिन वो वही चाहते हैं। You may notice pattern of behavior that seems to crop up at certain times of the day. जैसे सारा दिन तो वो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन बेड टाइम पे या कुछ टास्क के वक्त, होमवर्क करते वक्त, खेलते वक्त, कुछ स्पेशल लोगों के साथ ही सिर्फ उनकी ये चीजें जो दिख रही हैं ये सामने आती हैं। आप ये भी नोटिस कर सकते हो कि बच्चा घर से बाहर तो बहुत अच्छा रहता है, शायद लास्ट सेशन में भी मैंने ये डिस्कस किया था, मेरे पास मैक्सिमम पेरेंट्स की कंप्लेन यही आती है, और मुझे भी अपने बच्चों के केस में ये महसूस होता रहा है कि दे आर वेरी गुड इन आउटसाइड वर्ल्ड बट व्हेनेवर दे आर एट होम विद पेरेंट्स सो दे आर बिहेविंग डिफरेंटली, स्पेशली नेगेटिवली। टेंट्रम्स एंड अदर काइंड्स ऑफ एक्टिंग आउट, दिस इज अ नॉर्मल थिंग।
हम सब बच्चे होते हुए हमने भी किया है। चाइल्डहुड इसी को कहते हैं। बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, ये हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चे ही वैसा बिहेव कर सकते हैं। ये साइन है कि बच्चा जो है थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो रहा है, उसके वर्बल एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, उसके अपने ओपिनियन आ रहे हैं, उसके अपने कुछ व्यू पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं। बच्चा बाउंड्रीज को टेस्ट कर रहा है, कुछ स्किल्स और ओपिनियन वो डेवलप कर रहा है और अपने आसपास के वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा है। बट जब ये जरूरत से ज्यादा होने लगे, जब ये अदर एक्सट्रीम एंड पे जाने लगे, इट कैन स्ट्रेन द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। रेगुलर फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, रिसेंटमेंट होने लगती है, जो कि फैमिली एनवायरनमेंट के लिए, पेरेंट और चाइल्ड के कम्युनिकेशन के लिए, कन्वर्सेशन के लिए हेल्दी नहीं। वेदर योर चाइल्ड इज in the early stages of learning about self-regulation and boundaries, or if your family has been struggling and you are looking for help, so this webinar is going to explain more about how kids learn to manage their behavior, what parents can do to aid this process, and how to get more support if you need it. So I hope everybody is ready. आज मैं यहाँ, पार्डन मी, मैं किसी की साइड नहीं लेने वाली हूँ, ना पेरेंट्स की ना बच्चों की। मैं बहुत ही अनबायस्ड, अनकंडीशनल, एम्पैथेटिक जो है व्यू पॉइंट देने वाली हूँ। सो आपको ये सुन के झटका लगेगा, वट एवर इज हैपनिंग अराउंड, चाहे हम उसे सोशल इम्पैक्ट बोलें, सोशल मीडिया इम्पैक्ट बोलें, चाहे हम उसे कुछ भी बोलें, कहीं ना कहीं से ये बिहेवियरल जो चेंजेस हैं बच्चे में, या डेविएशन है, या जो भी इरेगुलरिटी है, इसके दो ही मेजर कारण हैं, नेचर और नर्चर। बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ नेचर एंड नर्चरिंग। नेचर मीन्स जीन्स, बायोलॉजिकल जो हमारे हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं, और नर्चरिंग मीन्स एनवायरमेंट कंडीशनिंग। एनवायरमेंट कंडीशनिंग सिर्फ घर नहीं होता, स्कूल होता है, पड़ोस होता है, सोसाइटी होती है, सोशल मीडिया है, वो सारे गैजेट्स हैं जो आपने उसे लेके दिए, वो वाईफाई कनेक्शन है जो हमने लगवा के दिया, वो कोविड के बाद के जो ऑनलाइन क्लासेस के सिनेरियोज हैं जो हमने बच्चे को दिए, और हमारे खुद के पार्टनर्स का रिलेशनशिप, हमारी फैमिलीज, फर्स्ट फैमिलीज के साथ रिलेशनशिप, हमारा खुद का कंडक्ट, हमारे खुद की पर्सनैलिटी, हमारे खुद के बिहेवियर्स, बहुत सारा मसाला बच्चे को हम गिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चा इन सारी चीजों में उतर रहा है। हमसे मतलब सिर्फ पेरेंट्स नहीं है, हमसे मतलब हम बहुत सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अगर आज मेरे इस ऑडियंस में, मेरे लिसनर्स में टीचर्स हैं, तो ट्रस्ट मी, टीचर्स हैव ह्यूज इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स। तो प्लीज आप लोग जरूर ये चीज को अपने ध्यान में रखिए कि अगर बच्चा कोई मिसबिहेव कर रहा है, बच्चे में कोई बिहेवियर डिसऑर्डर क्लास में दिख रहा है, तो कृपया करके उसे साइड लाइन, इग्नोर, रिजेक्ट, लेबल मत करिए। उसे आपकी अटेंशन की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपका उसके पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना, उसको आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करना, दिस इज नीड ऑफ द आवर। क्योंकि सबसे ज्यादा बुली स्कूल से शुरू होती है, जब एक टीचर इग्नोर करता है, रिजेक्ट करता है, लेबल करता है, और फिर बच्चे भी उसका हिस्सा बन जाते हैं और वो एक बच्चा विक्टिम की तरह शिकार हो जाता है। आई हैव सीन मल्टीपल केसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन बीइंग बुलीड इन द क्लास, जिससे फिर बिहेवियरल डिसऑर्डर मैग्नीफाई होता है, बच्चे का सेल्फ स्टीम टोटली क्रैश हो जाता है। पेरेंट्स का इक्वल रोल है, लेकिन मैं एज एन एजुकेटर, एज ए ट्रेनर, एज ए कोच, मैं समझती हूँ कि हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं पेरेंट्स से भी ज्यादा है। आप कुछ ना भी कर सकें, आप पेरेंट्स को इंटीमेट करें, आप उनको एज ए सपोर्ट सिस्टम साथ खड़े रहें और राइट हेल्प के साथ कनेक्ट करें, और बच्चे के साथ एम्पैथी और पेरेंट्स के साथ एक हम्बल कोऑपरेशन, सिर्फ एक यही रिक्वायर्ड होती है इस केस में। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी तो नहीं है, एक इंसिडेंट या एक रियल फैक्ट बताना चाहूंगी। सबने बैंकॉक थाईलैंड का नाम सुना होगा। इंसिडेंटली आज मेरे ख्याल मेल्स कुछ कम है मेरे इस पार्टिसिपेंट्स में, और इंडियन मेल का ध्यान एकदम से कहीं और चला जाता है जब भी हम बैंकॉक थाईलैंड का नाम लेते हैं। बट जोक्स अपार्ट,
सभी के लिए एक जो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है एक बुद्धा का टेम्पल वहां पे, जिसका गोल्ड का स्टेचू है, एंड इट यूज्ड टू बी हाईएस्ट स्टेचू ऑफ द वर्ल्ड इन सम टाइम्स। पूरा एक प्योर गोल्ड का स्टेचू और ह्यूज या हाईएस्ट स्टेचू ऑफ द वर्ल्ड होना, आप समझ सकते हो कि उसकी वैल्यू क्या रही। 18th सेंचुरी में बर्मा आर्मीज ने बार बार इस मंदिर पे अटैक किया, इस मोनेस्ट्री पे अटैक किया ताकि वो इस मूर्ति को चुरा सके, और ये लगातार होता रहा। अलग अलग दुश्मन देशों को लालच आता था कि हम इसको ले जाएं ताकि ये हमारी धरोहर बन जाए, जिसकी वजह से वहां के मंक्स को बहुत वरी होता था। तो वंस दे सैट टुगेदर टू डिस्कस अबाउट इट कि अभी तक तो हम इसकी रक्षा कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में हमारी अगली जनरेशंस पता नहीं हमारे इस आइडियल को बचा पाएंगी कि नहीं, तो क्यों ना कोई ऐसा सॉल्यूशन किया जाए कि किसी को ये पता ही ना चले कि ये गोल्ड का है, तो लालच भी ना आए। आई फ्रीक्वेंटली आस्क फ्रॉम पीपल कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका, कोई बताएगा चैट में प्लीज। यस प्लीज। उन्होंने क्या सॉल्यूशन सोचा होगा कि वो बुद्धा का गोल्ड का स्टैचू गोल्ड का ना दिखे और उसके ऊपर किसी की लालच भरी नजर ना हो और कोई उसे अटैक ना करे उनको। ओके, ज्यादा टाइम हम यूज नहीं कर सकते, यहाँ वेट नहीं कर सकते। एनीवेज, बहुत सारे सॉल्यूशंस मेरे पास आते हैं कि ग्रिल लगा दें, उसको दीवार खड़ी कर दें और उसको ताला लगा दें, वट एवर, बट एक्चुअली यस, ललिता जी वेरी गुड। No, spreading wrong information, it doesn't suit to the monks actually. Covered with some material, और उस वक्त अगर हम लेट 18th सेंचुरी की या अर्ली 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो उनके पास मड के सिवाय कुछ नहीं था। सो दे यूज्ड मड कवरिंग टू कर दैट स्टेचू, लेकिन एक मूर्तिकार को, आर्टिस्ट को बुला के उसे प्रॉपरली शेप दिया गया ताकि वो उनका जो एक ओरिजिनल आइडियल है वो बुद्धा जी वैसे दिखे भी, बिकॉज बड़े श्रद्धेय हैं सबके लिए अगर हम बुद्धिज्म की बात करते हैं। सॉरी। तो उसको कवर कर दिया गया और थोड़ी चैन की सांस आई, थोड़े अटैक्स होने भी कम हुए धीरे धीरे। जब जब आगे ओवर द इयर्स उसकी ब्रेकेज होती थी, कुछ डैमेज होता था, तो उसको फिर से अगली एक और लेयर के साथ रिपेयर कर दिया जाता था। धीरे धीरे पीओपी आ गई तो पीओपी की कवरिंग उस पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू कर दी गई। और इंटरेस्टिंगली एक जनरेशन मंक्स की ऐसी आ गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिन्हें खुद ये पता नहीं था कि उनके जो ये श्रद्धेय हैं, उनके जो ये बुद्धा हैं, ये एक्चुअली क्या हैं, व्हाट दे आर कैरिंग ओरिजिनली, बिकॉज सिंस चाइल्डहुड जब से उन्होंने होश संभाला उन्होंने उसको कवर्ड ही देखा, एंड दे वर सर्विंग दैट आइडियल इन दैट मैनर ओनली। जब तिब्बत आजाद हुआ तो उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की कि अब इंडिपेंडेंस के बाद टूरिस्ट बढ़ रहा है, हमारे पास ये मॉनेस्ट्री की जगह कम हो गई है, तो हमें नया लैंड दिया जाए। नया लैंड एलोकेट हुआ, बहुत ही वेल फ्लरिश्ड ग्रीन कैंपस, लश ग्रीन कैंपस बनाया गया, फाउंटेन्स लगाए गए जो आज है, और मिडल ऑफ दैट स्पेस बुद्धा जी को इंस्टॉल करने की एक जगह, प्लेटफॉर्म बनाया गया। और फाइनली बुद्धा जी के उस स्टेचू को वहां से उठा के नई जगह पे शिफ्ट करने का टाइम आया। तो टेल मी इन चैट कि वो लोग जब उसको शिफ्ट करने लगे होंगे तो क्या सोच के शिफ्ट करने लगे होंगे कि ये किस चीज की मूर्ति है, व्हाट इज द मटीरियल ऑफ दैट स्टेचू। यस प्लीज। पीओपी, मड, they were not aware at all. Yes Sweta ji, very good. Preeti ji, very good. Wow, this I can expect you from my darling Karen. What they saw, जो उन्हें दिखाई दिया, जो उनको पेश किया गया, yes, जो वो ऑब्जर्व कर पा रहे थे, yes, they were not aware about what they are carrying, what they are having inside. आउटसाइड लेयर्स से ही वो जज कर रहे थे कि ये मड या पीओपी की ही एक स्टेचू है जिसे उन्हें बड़े केयरफुली, डेलिकेटली, सोफिस्टिकली कैरी करना है क्योंकि ये टूट सकता है। तो उन्होंने बहुत डीप
चारों तरफ पहले खोदा, उसको बहुत ज्यादा डाउन किया ताकि वो नीचे से उसे उठा सके, ऊपर कोई डैमेज ना हो। एंड वंस दे वर trying to do that because it was so heavy, or they were so shocked how a mud statue can covered with POP, light material of POP, can be so heavy. They were so shocked. और इसी जिद्दोजहद में एक पत्थर ऊपर से पहाड़ से गिरता हुआ आया और वो बुद्धा जी के लैब पे गिरा। और जैसे ही उस लैब पे गिरा तो वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि माय गॉड, इट विल बी डैमेज्ड, इट विल बी डिस्ट्रॉयड, बिकॉज दे वर एज्यूमिंग इट एज ए मड कि ये तो एकदम से फिनिश हो जाएगी। बट जैसे ही वो पत्थर उस लैब पे गिरा उनके, तो बहुत जोर से टन की आवाज आई। इट वॉज ए मेटल साउंड। Why? Because there was metal, strong shining metal inside that outside layer. So वो बहुत सब लोग घबरा गए, जो लेबर थे, जो भी कॉन्ट्रैक्टर था, वो भागे भागे मैनेजमेंट के पास गए कि कुछ तो गड़बड़ है। तो मैनेजमेंट ने आके देखा, जब वहां से चीजें हटाई गई स्टेयर्स लगा के, बिकॉज इट वाज ए ह्यूज स्टेचू, तो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था उसके चारों तरफ, उसके ऊपर चढ़ के जब देखा गया तो ब्राइट सनलाइट में वहां से ग्लिटरिंग गोल्ड इट वाज शाइनिंग। एंड एवरीबॉडी वाज सो अमेज्ड, अरे वाओ, ये तो जादू हो गया कि शायद हमें आज कोई ब्लेसिंग मिली है कि ये हमने यहाँ से जमीन खोदी तो ये स्टैचू चेंज हो गया। तो उसी अमेजिंग मैजिक के उसमें नशे में उन लोगों ने उसे पूरा क्लीन किया, लेयर्स उतारी गई, उसको धोया गया, साफ किया गया, और फिर पूरी आन बान शान के साथ उसी नई जगह पे उसे शिफ्ट किया गया। आप भी जाके आज वो देख सकते हैं। बट धीरे धीरे उन लोगों को डेफिनेटली अपनी हिस्ट्री से पता चला कि इट इज नॉट अ न्यू थिंग, इट वाज विद अस, बट इट गॉट covered with layer by some meaning. So now it is your turn, my dear teammates, कि बताइए कि इससे हमें क्या सीखने को मिला, इस पूरे इंसिडेंट से आप क्या समझ पाए? यस, कम ऑन। जो दिखता है वो होता नहीं है, हम लोग को ये बच्चों से हम कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज को कि ऊपर से जो दिख रहा है वो चीज नहीं है, अंदर से कुछ और ही। कौन बात कर रहे हैं? रितिका। रितिका, वाओ, रितिका जी, welcome another parenting coach to this session. I'm so amazed to have you, Ritika ma'am, here. Wonderful. Yes, anybody else wants to share something? Yes, Lalita ji, you are right. There's always an underlying issue. Whatever behavior, it's always driven by some underlying issue, which we just need to dig deeper and find out before we have a judgment about the child. Wonderful. So true. Thank you so much. अपना नाम भी साथ साथ बताते रहिए please, because I'm not able to see the video window. I'm Anjana. Anjana ji, thank you so much for participating and giving such a wonderful insight. Yes, Vinita ji, you are right. Recognition of the pure value inside a person rather than observing from the outside layers, as Anjana ma'am said. And Anita ji, you are so right. As a parent, we have to bait our child inwardly. तो अगर हमारा अंदर का सॉलिड बेस स्ट्रांग है, अगर हमारा रूट स्ट्रांग है, अगर हमारी नींव मजबूत है, तो इमारत तो अच्छी खड़ी होगी ही। छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी, इश्यूज आएंगे, तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि पहले हमें अपनी हेरिडिटरी जो एक जनरेशनल फ्लो है वो चेक करते रहना है। दूसरा, हमें अपना एनवायरमेंटल जो एक कंट्रीब्यूशन है वो चेक करते रहना है, और अपनी तरफ से छोटे बच्चे की जो नींव है, फाउंडेशन है, उस पर बराबर काम बढ़िया करते रहना है। आंधियां, तूफान, प्रॉब्लम्स ये आती रहेंगी, हमारी लाइफ में भी आई, इनकी लाइफ में भी आएंगी, बट they won't be able to damage them. These layers will definitely cover their originality for some time, but we need to uncover those things to recognize their inner true innate potential. And आपकी अगर परवरिश सही दिशा में जा रही है तो घबराने की नहीं, सिर्फ अलर्ट रहने की और टाइमली सॉल्यूशंस करने की जरूरत है। So yes, we need to see deeper, Karen, you are right.
बिल्कुल हमारे पेरेंट्स ने जो जिस तरह की अपब्रिंगिंग की, हमारे जो कंडीशनिंग हुई, हमें पहले तो उससे भी बाहर आना है। वो चीजें जो हमारे टाइम पे ऑब्जेक्शनेबल थी, वो आज नहीं है। वी नीड टू बी वेरी मच ओपन विद आवर किड्स ऑन डिफरेंट स्केरी इश्यूज। जैसे तुषार जी ने शुरू में बताया कि मेरा सबसे बड़ा जो एक स्ट्रगल है और एक कोशिश है, वो यही है कि मैं पेरेंट्स को ये सारे स्टिग्मास और इनहिबिशन से बाहर निकाल पाऊं, जिसमें वो बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं कुछ भी शेयर करने में, डिस्कस करने में, क्योंकि हमें इस तरह से बड़ा नहीं किया गया। एंड ट्रस्ट मी, आई यूज्ड टू बी सेम। मैं आज इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये शेयर करना चाहूंगी कि मैं अपनी बड़ी बिटिया के साथ, बीइंग ए फर्स्ट चाइल्ड, जब वो टीनेज में आई तो मैं उससे के साथ पीरियड्स के बारे में डिस्कस करने में इतना हेजिटेंट थी एट सम टाइम। आई टुक हेल्प फ्रॉम माय फ्रेंड हु वाज वेरी ओपन विद हर, कि वो उसे बताए, फिर मैं आगे मैनेज कर लूंगी, कि एक इनिशिएशन ऑफ टॉपिक ही नहीं हो पा रहा था। एंड हैरानी की बात क्या है कि इवन आई वाज so we behave differently in different roles, and that is completely okay. Take yourself easy, don't blame, don't be in guilt, and don't be defensive. हम दोनों ही एक्सट्रीम एंड ले लेते हैं, या तो हम बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, हम बहुत इंसल्टेड और पर्सनली ले लेते हैं चीजों को, या फिर हम बिल्कुल ही गिल्ट और शेम में चले जाते हैं। नहीं, हमें सीखना है अपने ही बिहेवियर से, अपने ही एक्सपीरियंसेस से, अपने ही एक्शन से, और हमारे एक्शंस का जो चॉइसेस के जो कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, उनसे भी हमें सीख के कुछ चीजें अनलर्न और रीलर्न करनी है। आप अगर मेरी लाइफ का बेस्ट फंडा पूछें कि मेरा बेस्ट मंत्रा क्या है, तो आज भी मैं एज ए स्टूडेंट इस एज में, आई हैव कंप्लीटेड 5.5 decades ऑफ माई लाइफ, जिसमें मोर देन 3 decades मेरे प्रोफेशनल लाइफ के भी हो गए हैं। इसमें मैंने अगर एक चीज कायम रखी है तो ये है कि हर दिन एक अबोध बच्चे की तरह शुरू करना है। ये जो मुझे इतना कुछ पता है, आई एम एक्सपीरियंस्ड, आई एम परफेक्ट, आई एम बेस्ट, ये वाला बोझ जो है ना, हर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हमें भार की तरह नीचे को दबाता है। जब ये इतना बड़ा ईगो का बोझ यहाँ आ जाता है, जब हम एक अबोध बालक की तरह रोज सुबह मुस्कुराते हुए उठते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं, then we are always ready to accept our mistakes, then we are always ready to learn from the people around, और उससे हमारा फिर लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग बहुत आसान हो जाती है। और ये एक सबसे बड़ा टूल है, आप एक अपनी पेरेंटिंग को और एज ए कोचिंग को किसी भी प्रोफेशनल कैपेसिटी में, पर्सनल कैपेसिटी में आप अच्छे से सर्व कर सकते हैं। अब अगर हम इतनी बातें डिस्कस कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर इन किड्स। ये बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते क्या हैं? बेसिकली जो लेयर्स हैं ना, जो अभी अभी हमने बुद्धा के स्टैचू का एग्जांपल लिया और लेयर्स की बात की, ये सारे लेयर्स ही बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं, जो ऊपर ऊपर से, इधर उधर से, डस्ट से और कवरेज से आ रही हैं। और अगर आपने एक चीज मेंशन नहीं की किसी ने भी, और मैं भी शायद भूल गई, व्हाई दैट एक्शन वाज टेकन, पुटिंग लेयर्स ऑन बुद्धा स्टैचू, जबकि वो गोल्ड का था, that was need of that time to protect it, to protect from surrounding threats and dangers। उनसे बचने के लिए, सर्वाइवल, सेफ्टी, सिक्योरिटी के लिए वो एक्शन लिया गया था। एंड ट्रस्ट मी, एवरी चाइल्ड बिहेविंग एबनॉर्मली, ये उसका एक स्टाइल है, एक टूल है टू प्रोटेक्ट हिम और हरसेल्फ फ्रॉम द सराउंडिंग थ्रेट्स और चैलेंजेस। हम उसे उसकी इंटेंशन मान लेते हैं, जबकि वो उसकी एक प्रोटेक्शन है, उसने अपने ऊपर एक लेयर ओढ़ ली किसी एक चीज से बचने के लिए। बस हमें वो ढूंढना है कि उसके थ्रेट्स, उसके जो एक खतरे हैं, स्ट्रगल्स हैं, स्ट्रेसर्स हैं, वो क्या है जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। इतने से बात समझने की देर है, एवरीथिंग विल बी क्लियर, रादर देन गोइंग इनटू ब्लेम गेम, चाहे वो खुद के लिए हो, चाहे बच्चे के लिए हो, चाहे एनवायरनमेंट के लिए हो, सोशल मीडिया के लिए। अभी लास्ट डेज में मैं अपने एक ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल फ्रेंड्स के साथ बात कर रही थी कि हम ये नोटिस नहीं कर रहे कि हम सब लोग ये डिस्कस करते रहते हैं, बहुत बुरा हाल हो गया है, इतना बुरा माहौल हो गया है। कोविड के बाद तो बच्चों की हालत खराब है, बच्चों की क्या कहीं, इतना सोशल एडिक्शन हो गया, इतना गेम एडिक्शन हो गया, स्क्रीन एडिक्शन हो गया। एवरीबॉडी इज डिस्कसिंग दिस ओनली एंड ब्लेमिंग दिस और दैट।
क्या हम सॉल्यूशंस पे बात कर रहे हैं? नहीं, बच्चे भी सिर्फ प्रॉब्लम्स ही सुन रहे हैं अपने बारे में और माहौल के बारे में, और वो हमसे और ज्यादा डिटैच और डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो पहले ही घबराए पड़े हैं, डरे पड़े हैं, इनके साथ क्या बात करूं, ये तो मेरे ऊपर ही आएंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी परेशान है। एंड दे आर फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑनलाइन, और उसमें 10 साल से लेके ऊपर वाला बच्चा ये भी ढूंढ रहा है हाउ टू फिनिश माई लाइफ, बिकॉज इट इज गेटिंग हैक्टिक, इट्स गेटिंग बर्डन। कैसे मैं इस जिंदगी से छुटकारा पाऊं? एक रिसर्च से पता चला है कि मोस्ट सर्च जो इंजन्स में सबसे ज्यादा सर्च की हुई स्टेटमेंट विद इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 14 ईयर्स, उसके लिए तो ये है what are the porn sites, another is how to kill myself, how to have natural death। स्केरी लग रहा है, लेकिन इसे स्केरी हमें रहने नहीं देना। ये बच्चे इस तरह के इमोशनल डिसरेगुलेशन में या बिहेवियर डिसऑर्डर्स में क्यों आते हैं, यहाँ मैं एक छोटी सी साइंटिफिक प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल चीज आपसे शेयर करना चाहूंगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एज पेरेंट्स हम यहाँ होते हैं और हम यहाँ से बच्चा यहाँ है, हम यहाँ से बच्चे से ये वाला बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इंटेलिजेंस को, मैच्योरिटी को समझें तो ये ब्रेन है, ये ब्रेन है। आप सब समझ रहे हैं? एम आई विजिबल एवरीबॉडी? इज इट ओके? यस यस। सो ये ब्रेन है, और इसे हम ऐसे रखते हैं वॉलनट शेप। दिस इज इंटेलिजेंट और थिंकिंग ब्रेन। हो सकता है मेरी आज के पार्टिसिपेंट्स में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज मेरे से सुनी भी हो विद अनदर सेशन, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल फॉर न्यू कमर्स। ये इंटेलिजेंट एंड थिंकिंग ब्रेन है, जिसके अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं: रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड मेमोरी, फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन, अदर इंटेलिजेंस। ये सारे डिपार्टमेंट हमारे इंटेलिजेंट या थिंकिंग ब्रेन का हिस्सा है। हम बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये यहाँ से ऑपरेट करके बिहेव करें, आंसर करें, रिएक्ट करें, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि ये बच्चे की जो डेवलपमेंट है ये अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस पे होती हुई थोड़ी 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 बढ़ती तक 21 ईयर्स तक 75% डेवलप होती है, और 21 to 25 ईयर्स में मैक्सिमम डेवलपमेंट होती है फिनिशिंग लाइन पे। पर वो कहाँ से ऑपरेट करते हैं? इसी ब्रेन के अंदर एक हिस्सा है ये, जो हम इग्नोर कर जाते हैं, जिसको आज तक हमने कभी भी ह्यूमन बॉडी पे ना तो ड्रॉ किया ना लेबल किया, लेकिन बात उसके लिए बहुत करते हैं, विच इज माइंड। इमोशनल और write down, our mind is nothing else, it is another compartment or department of brain, but it is emotional or feeling brain, it is different from intelligent or thinking brain। और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको कि ये इमोशनल और फीलिंग ब्रेन 0 to 9 months में फुली मैच्योर हो जाता है। इट इज फुली ग्रोन व्हेन चाइल्ड इज बॉर्न, और इसकी कैपेसिटी, इसका जो एक फैब्रिक है, इसका जो टेक्सचर है, इसका जो टाइप है, इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी जो क्वालिटी है, वो बच्चा अपने साथ लेके आया डिपेंडिंग अपॉन मदर साइकोलॉजी, मदर स्टेट ऑफ माइंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्लस कॉम्बिनेशन एंड वॉल्यूम ऑफ फादर्स जीन्स। तो इसमें कहीं बच्चे का फॉल्ट है? नो। बच्चे की 100% इमोशनल ग्रोथ हो चुकी है ऑलरेडी, जब उसने इस धरती पर कदम रखा, हॉस्पिटल के बेड पर आपने उसे पैदा किया, बर्थ दिया, तभी वो सुई लगने पे रोया, भूख लगने पे रोया, फीड मिलने पे हंसा, मम्मा का फेस देखने पे खिलखिलाया, और अपने टॉयज को देख के उसके चेहरे पे ग्लो आया, और थ्रेटनिंग सिचुएशन को देख के वो डरा। हर तरह का इमोशन बच्चा पहले से लेके आया है। और कौन सा बच्चा इमोशनली स्ट्रांग होगा, इमोशनली सेंसिटिव होगा, ये 100% डिपेंड करता है कि कंसीव होने से लेके बर्थ तक मदर की स्टेट ऑफ माइंड क्या थी। तो जब भी आपका बच्चा स्क्रीन पे दिखते हुए बच्चे की तरफ महसूस होता हुआ लगे, याद करिए
कि जब आपने उसे कैरी किया था अपने वॉम में, तो आप किस तरह की इमोशनल एक्सपीरियंस से गुजर रही। सिर्फ आप ही नहीं, आपके आसपास का माहौल कैसा था, आपके हस्बैंड का बिहेवियर कैसा था, आपके इन-लॉज का बिहेवियर कैसा था, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी थी, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी थी। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो हम इतना इग्नोर कर जाते हैं। हम कहते हैं मेरी डिलीवरी तो नॉर्मल थी, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। इट इज नॉट ओनली अबाउट मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस, इट्स मच मच मोर अबाउट साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसके साथ बच्चा 14, 15, 20, 21 साल तक ज्यादा ऑपरेट करता है। बच्चे का ये डिपार्टमेंट फुली डेवलप्ड है और इसके ही कंट्रोल में है, वो यहीं से ऑपरेट करेगा। उससे हम सेंसिबिलिटी, इंटेलिजेंस, मैच्योरिटी, रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग और राइट डिसीजन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते टू दैट एक्सटेंट जो हम एडल्ट्स का है। हाँ, हम उनकी जितनी भी डेवलपमेंट हो चुकी है, जितना भी उनका ये डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है, उनका ओपिनियन जरूर सुने, उसे इवेलुएट करें कि उन्हें हमारे किस इनपुट की जरूरत है, बट नॉट निगेटिंग देयर्स एंड इम्पोजिंग आवर्स। और ये एक्सपेक्टेशन जो है ना, अनरीजनेबल, अनरियलिस्टिक, ये सबसे बड़ा कारण है हमारे और उनके कम्युनिकेशन गैप का। एम आई क्लियर? कुछ नया इंसाइट मिला मेरे यहाँ पेरेंट्स को तो प्लीज चैट में लिखिए BO, बल्ब ऑन मूवमेंट, कि कोई एक बल्ब जला आज नया, प्लीज। थैंक यू सो मच। फॉर ए मिनट और सो हम लोग कुछ किसी को एक शेयर करने का यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं कि अगर कोई कुछ इनपुट, इनसाइट शेयर करना चाहे, प्लीज। एनीबडी वांट्स टू शेयर समथिंग? Ma'am, I want to ask one question. Yes. Who is this? I am Dhruti Joshi. जी. Can we get recording of this session? बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के। डेफिनेटली आप खुद तो यहाँ हैं ही, लेकिन हो सकता है आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, है ना? I want to go through this session. I feel more than once. Oh, That's why. great. Actually, I will put this recording on YouTube channel and then I will share that link in group. Okay? Because recording directly share करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लंबी होती है और उसके ऊपर बहुत काम करना पड़ता है, लेकिन आप मेरे YouTube चैनल पे जाके इसे देख सकेंगे। ठीक है मैम, चलेगा। Thank you. Thank you so much. Ma'am, this is Anjana. Yes. Ma'am, emotional and what a mother or the would-be mother goes through is something which nobody is even interested in. What I've realized is, even as a personal experience with my first child, Yes. nobody had a clue. I had no clue what I had to do, what I need. I was so insecure, which nobody around me understood. And I think those insecurities, we somewhere there, I was passing on to my unborn child, and I can see the difference. I could see the difference. Yes, we tried after the birth, everything, to make it all perfect, and it did work. But I know there are certain insecurities which, after I started going into the psychology and then being a coach, I realized it all stems from there. It is not after birth. It is before, in those 9 months, what I went through, which has affected my child. Yes, definitely. You are so right. You are so right. And that's why we are into awareness कि अभी तक जो हो गया, जो डैमेज डन हो गया, पहले क्या होता था, अर्लियर these things were not mattering much because we were surrounded by so many people in joint families. एक huge family structure होता था, and we were under the influence of so many people. If somebody was narcissistic or dominating or negative stressor, so the other person was supporting us, giving us some understanding, caring for us, तो वो balance हो जाता था. But nowadays, being in nuclear families और वो गिने चुने 4-6 लोग हैं फैमिली के, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट, एक स्ट्रेसर का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, because we are only intaking that. So in that case, it is very, very important to understand that's how marriage counselings are coming in, that's how family counselings are coming in. We are trying to
एजुकेट एंड एम्पावर पीपल कि अगर आपके घर में अब एक लेडी ने कंसीव किया है तो उसको किस तरह का हेल्दी एनवायरनमेंट देना है. इवन my elder daughter is 30 now, so 30 years back when I got pregnant, so somebody told me आप अच्छे अच्छे सुंदर बच्चों की फोटो देखा करो तो वैसा ही बेबी होगा, है ना. आप ये ऑरेंज खाया करो तो उसका कलर फेयर होगा. लाइक उस जमाने में हमारे आसपास के लोग जो बोलते थे, तो उससे कितना समझ में आता है कि इफ दे आर कंसर्न्ड अबाउट दीज थिंग्स, कि आप रिलीजियस चीजें देखो, क्या पढ़ते हो, क्या सुनते हो, क्या देखते हो, किस तरह के ग्रुप में इंटरेक्ट करते हो, ये सब चीजें सबको पता था तब भी कि ये इन्फ्लुएंस करती हैं. बट इग्नोरेंस बहुत ज्यादा थी. अवेयरनेस से ज्यादा इग्नोरेंस हमें मार रही है. ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, पता सब कुछ है, बट नोइंग इज नोइंग एंड डूइंग इज डूइंग. व्हाट माय इंटेंशन इज कि हम लोग हाईलाइट करें एक्शन को, कि पता होना काफी नहीं है. दैट इज अ क्लटर विच इज हियर इन माइंड. वो दूसरों को एडवाइस देने के लिए बहुत अच्छा काम करता है. वी आर स्प्रेडिंग नॉलेज लाइक एनीथिंग, बट व्हेन इट कम्स टू आवर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस और लाइफ, हम फिर खुद भी भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं. सो एक्शन में आना बहुत जरूरी है. एंड दैट्स हाउ आई एम सो मच कीन टू क्रिएट ए फोर्स, टू क्रिएट एन आर्मी जो अवेयरनेस का काम करे, एम्पावरमेंट का काम करे. बिजनेस होता रहेगा, पैसे आते रहेंगे यार, लेकिन अभी हमें इस वक्त जो माहौल चल रहा है, हमारी फ्यूचर जनरेशंस जो खतरे में है, हम सबको एक साथ होके मिलके अलग अलग टॉपिक्स जो है वो फिगर आउट करने हैं, अलग अलग कंसर्न फिगर आउट करने हैं कि हम इस पे कितना ज्यादा लाउडली शोर मचा सकते हैं कि सुनो सुनो सुनो. करो करो करो. Am I right? Totally right, ma'am. Good afternoon, ma'am. Srinsani ma'am, I also had one question. Actually मुझे ये चीज फर्स्ट टाइम ही मैं रियली अवेयर हुए हैं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड होती है वो बच्चे की साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग हो जाती है वैसी. लाइक इफ द मदर इज फेसिंग अ फियर और फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, तो वो जो कंडीशनिंग बच्चे की हो गई है मींस ही विल कैरी दैट लाइफ टाइम, और वो बच्चा भी वैसे ही डरेगा लाइक व्हेन ही वाज इन द क्रिटिकल कंडीशन, या इससे ओवरकम किया जा सकता है? लाइक किया जा सकता है. इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम एक स्टैंप लगा दी और क्लोज कर दिया कि डैमेज हो गया तो डन, अब ऐसे ही चलेगा. अगर उसे प्रॉपरली टाइमली रिकॉग्नाइज करके आइडेंटिफाई करके एड्रेस ना किया जाए, तब वो लॉन्ग लाइफ चलता है. और एडल्टहुड में जाके आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कितने सारे इश्यूज से फेस करते हैं. इवन मैं तो ये कहूंगी जो हमारी जिंदगी में इस वक्त नार्सिस्टिक लोग हैं, जो नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, इवन वो भी इसी चीज का शिकार होके यहाँ तक आए हैं. तो साइकोलॉजी इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग, जिसने मुझे ये समझाया कि वी ऑल आर ह्यूमन. हम सबको ये समझने की जरूरत है कि दूसरा इंसान अगर इतना हार्श, नेगेटिव, ओवर रूलिंग, कंट्रोलिंग और नार्सिस्टिक है, तो उसे भी हमदर्दी की, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, क्योंकि वो भी उसे कहीं से मिला है. सो इसी तरह से वो लोग इसीलिए अब तक बिहेव कर रहे हैं बिकॉज उनके ऊपर किसी ने काम नहीं किया. और अगर जिस दिन हम अवेयर हो गए कि यस माय चाइल्ड हैज सफर्ड थ्रू दैट साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग, उसको वो गिफ्टेड मिला है और जिसका ये आउटकम है, इमीडिएटली हमें काम करना शुरू करना है. वही हम सपोर्ट करते हैं पेरेंटल ट्रेनिंग की. पेरेंटल ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, अलग अलग इश्यूज से रिलेटेड. चाइल्ड काउंसलिंग के हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगी. यस, हम उसी एंड पे मैम इफ इवन द चाइल्ड इज नॉट एडमिटिंग कि हमें खुद ही नहीं पता होता कि ये प्रॉब्लम इस वजह से है, उस वो मतलब देन एज ए पेरेंट हाउ कैन वी हेल्प? डिनायल इज एक्चुअली डेडली एंड डैमेजिंग. और वहां पेरेंट्स को बहुत स्मार्टली चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं कि अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा है ना, तो कोशिश करिए ऐसे एक सोर्स को पकड़िए जिसका उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, या फिर अपना स्टाइल चेंज करिए. रादर देन मेंशनिंग नेगेटिव बिहेवियर और उसमें उसकी फॉल्ट फाइंडिंग ना लगे, उसको ये ना लगे कि आई एम ए डिफेक्टिव पीस और इसमें मेरा फॉल्ट डिक्लेयर होगा. कंसर्न शो करिए. हम आगे इन्हीं चीजों पे आ रहे हैं, सो वी विल कंटिन्यू विद दिस. At the end of the session, अगर आपको आपका आंसर नहीं मिला, definitely we will handle that. Thank you so much. One for coming. question of mine, ma'am, please. Sorry. Excuse me, ma'am. I Yes. want to ask one thing, if I am not disturbing the routine. Ma'am, actually, I know some of the person in the neighborhood
what is the actually they have an heredity कि उनके OCD की जो प्रॉब्लम है वो उनके हेरिडिटी में है, मींस दे हैव सीन कि 4-5 जनरेशन से उनकी OCD जो ना घर में फैमिली में किसी ना किसी को है ही सही। तो जो मदर है शी इज कंसर्न कि जो अब उनका बच्चा पैदा हुआ है अब उसको वो OCD तो नहीं स्टार्ट हो जाएगी, तो वो कैसे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हेरिडिटी में आ रही है, तो उसको हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं? बिल्कुल, इसका मैं आंसर दूंगी एंड पे। आप क्वेश्चन अपना संभाल के रखिए बिकॉज इट विल टेक टाइम, तो मैं अभी बीच में नहीं देना चाहती। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड पार्टिसिपेटिंग, थैंक यू। सो बिहेवियरल डिसऑर्डर वर्ड हम यूज कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव टर्म है और हमें ज्यादातर घबराहट होती है जब भी हम डिसऑर्डर को सुनते हैं। तो आज मैं आप सब यहाँ जो मेरे साथ प्रेजेंट हैं उनका ये एक स्टिग्मा भी ब्रेक करना चाहती हूँ रिलेटेड टू वर्ड डिसऑर्डर। This term is not a defect. This term is not a mental health issue only. Disorder means when anything is not in order. बस मान लीजिए मेरी किचन जो है वो आज मैसी है, वो ऑर्डर में नहीं है, तो मेरी किचन आज डिसऑर्डर है। इट्स ओके, वो ऑर्डर हो जाएगी, थोड़ा सा सफाई करके चीजों को अरेंज करने की जरूरत है। डिसऑर्डर कब आता है कि जब हमारी लाइफ के किसी भी एक मेजर कंसर्न की वजह से हमें डिस्ट्रेस हो रहा है या फिर हमारी लाइफ डिसफंक्शनल हो रही है एट एनी फ्रंट, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल फ्रंट। हम अपनी 100% कैपेसिटी से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, हिंड्रेंस आ रही है उस डिस्ट्रेस की वजह से या उस कारण की वजह से जिसकी वजह से डिस्ट्रेस या डिसफंक्शनैलिटी है। तो आपने डिसऑर्डर सुनते ही ऐसे शेमफुल नहीं हो जाना है, किसी बिल में जाके चुप नहीं जाना है। नो, वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज डिस्ट्रेसिंग एंड हाउ इट इज गेटिंग डिसफंक्शनल इन माई लाइफ, और उसके फिर मेजर रीजंस पे जाएंगे, ट्रिगर्स पे जाएंगे, कॉजेस पे जाएंगे और फिर सॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो बिहेवियरल डिसऑर्डर बच्चों में तब होता है जब परसिस्टेंटली, कॉन्टिन्यूसली डिसरप्टिव बिहेवियर हो, जो घर पे, स्कूल पे या सोशल सिचुएशन में बच्चे को सही बिहेव नहीं करने दे रहा, अपना 100% नहीं करने दे रहा। वरना मैम वी विल टॉक आफ्टर द सेशन प्लीज, एट द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू सो मच। सो चिल्ड्रन विद बिहेवियरल डिसऑर्डर जो है वो पेरेंट्स के लिए बहुत हार्ड टाइम होते हैं। आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। तो मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि टेंशन मत लो, परेशान मत हो, चिल नहीं होता यार। जब भुगतना पड़ता है तब पता चलता है कि बच्चे की रेगुलर इम्पल्सिविटी, हाइपर एक्टिविटी, उसका जो डिसओबियंस है और उसका क्रिमिनल एक्टिविटी कई बार शुरू हो जाती है, वो इतना डेंजरस एक्शंस में आ जाता है जो हमारे लिए बहुत थ्रेटनिंग और बड़ा अलार्मिंग हो जाता है। तो उस वक्त टेंशन होना, स्ट्रेस होना जायज है, लेकिन कितनी देर प्रॉब्लम में स्टक रहेंगे? मान लीजिए आप लेट इवनिंग घर पे आए, घर पे कोई नहीं था और अंधेरा हो गया। जैसे ही आप लॉक खोलते हो तो डेफिनेटली आप अगर एंड ऑफ द डे पे घर पहुंचे हो, सुबह से निकले हो, तो किसी ने लाइट्स तो ऑन नहीं की होंगी। तो आप आते ही अंधेरे में भी ताला खोलते ही अचानक से ऑटोमेटिकली आपका हाथ किसकी तरफ जाता है? लाइट ऑन, स्विच ऑन करने के। आप कभी भी वहां खड़े होके अंधेरे को ब्लेम नहीं करते, आप क्रिब नहीं करते, आप ये नहीं कहते कि अरे मैं लाइट क्यों नहीं जला के गई, अरे तब जरूरत नहीं थी लेकिन अब है, तो हमें इंस्टेंटली सॉल्यूशन या एक्शन पे आना है। गॉट इट? तो अब हम थोड़े से रीजंस जो हैं पहले वो डिस्कस करेंगे कि ये बिहेवियर डिसऑर्डर्स किसी भी एज में दिखाई दें, किसी भी स्टेज पे दिखाई दें, तो उनके मेजर रीजंस या कॉजेज क्या हो सकते हैं। पहला तो है बर्थ फैक्टर्स और अर्ली ईयर्स। ये बहुत सारे एविडेंट रिसर्च फैक्ट्स हैं कि कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज, मैं भी उसका एक प्रूफ हूं, कैन लीड टू बिहेवियरल एंड डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स लेटर ऑन। दीज प्रॉब्लम्स कैन बी कंपाउंडेड, मतलब बढ़ सकती हैं और फ्लेयर हो सकती हैं इफ वन और बोथ पेरेंट्स सफर फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन। क्योंकि एक वही टाइम होता है एक न्यूली बॉर्न के लिए जब उसको बहुत ज्यादा नए एनवायरनमेंट में आते ही, नए टेम्परेचर में आते ही, नई जगह पे आते ही उसको बहुत केयर, कंसर्न और वार्मथ की जरूरत होती है, और उसमें मदर ज्यादातर उसके साथ रहती है और या फादर रहता है। और जब इन दोनों में से कोई भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन या स्ट्रेस से सफर कर रहा है, आई कैन फील दैट कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन तो सिर्फ लेडीज के लिए बना है यार, न्यू मॉम्स के लिए, ये फादर कहां से आ गए? यस, ये भी आज आपके लिए एक बल्ब ऑन मोमेंट है
हम क्यों भूल जाते हैं that person is also equally involved in new responsibilities. वो सिर्फ अपने जीन्स देने में ही कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, वो सिर्फ इस बच्चे की एग्जिस्टेंस में ही कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, आपका शेड्यूल, आपका माहौल, आपका बिहेवियर चेंज हुआ, उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट है. He is also going through that, but acting differently. शायद इतना असर नहीं होता बिकॉज उन्होंने बर्थ नहीं दिया है, लेकिन असर होता है. सो ये कंपाउंड हो जाती है प्रॉब्लम अगर दोनों पेरेंट्स ही इस वक्त डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं. और जो बर्थ के साथ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, दे कैन लीड टू एंजाइटी, एग्रेसिव बिहेवियर ड्यू टू न्यूरोबायोलॉजिकल कंडीशंस. सो इसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है सतर्क रहना कि हम प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक या डिलीवरी के बाद जो एक फेज है उसमें हम कैसा बिहेव कर रहे हैं. कुछ मेडिकल कंडीशन मदर की, जैसा मैंने बताया कि ड्यूरिंग माय सेकेंड डिलीवरी आई वाज सफरिंग विद सो मेनी मेडिकल इश्यूज और कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी थी, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी थी, जिसका मेरी छोटी बेटी के न्यूरोबायोलॉजिकल सिस्टम पे बहुत असर हुआ. We were lucky enough, we were blessed enough कि we were aware and we were doing the things in the right direction since early childhood. तो वो streamlined हो गई, manage हो गई, but we could see that difference. So behavioral disorders are more common in boys than in girls. ये हमने आज तक सोचा था, समझा था, लेकिन पिछले 10-12 साल से जो हम चेंज देख रहे हैं सिनेरियोज में, क्योंकि girls are getting more empowerment, गर्ल्स आर गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज, मोर अवेयरनेस, मोर फ्रीडम, तो अब ये चीजें इक्वल नजर आने लग गई. जो बच्चे एंगर या एग्रेशन शो करते हैं एट ए वेरी यंग एज, दे आर मोर लाइकली टू हैव बिहेवियरल इश्यूज लेटर इन लाइफ. जैसे अभी किसी ने पूछा था कि अगर हमें अभी ये रियलाइज हो जाए कि यस बच्चे के ऊपर फियर, स्ट्रेस या किसी चीज का असर है, तो क्या वो लेटर स्टेजेस पे एग्जिबिट होगा? यस, डेफिनेटली होगा, अगर टाइमली उसे एड्रेस और हैंडल ना किया जाए. जो डिसफंक्शनल फैमिलीज होती हैं, होमली एनवायरनमेंट, वो बहुत रोल प्ले करता है बच्चों के बिहेवियरल डिसऑर्डर में. और अगर बच्चों में वो सप्रेस्ड रहा, बहुत ज्यादा एग्जिबिट नहीं हुआ, तो लेटर स्टेजेस में जाके वो और भी ज्यादा ब्लास्ट के साथ आता है, जिसे हम प्रेशर कुकर सिंड्रोम बोलते हैं. कि अगर वो वेंट आउट साथ साथ नहीं हुआ, इट मीन्स वो खत्म नहीं हुआ, या है नहीं, एग्जिस्ट कर रहा है, पाइल अप हो रहा है, सप्रेस हो रहा है, और किसी एक छोटी सी चिंगारी से वो बुम करके फटेगा ड्यूरिंग एनी एडल्ट स्टेज. ज्यादातर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो हैं वो एसोसिएटेड होती हैं बच्चों की न्यूरोबायोलॉजिकल कंडीशंस जैसे रीडिंग एंड राइटिंग. पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर बच्चा लिख नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, बस यही प्रॉब्लम है, तो हम ज्यादातर वहीं से शुरू करते हैं. बट हिडन बहुत सारी और लेयर्स होती हैं जो सेकंड पार्ट में हम अगले वेबिनार में उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे. जो बच्चे बाय बर्थ कुछ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के साथ, जिन्हें हम स्पेशल किड्स बोलते हैं, वो बॉर्न होते हैं, दे आर ट्वाइस लाइकली एज अदर चिल्ड्रन टू डेवलप बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, बिकॉज उनकी इमोशनल रेगुलेशन, उनकी इम्पल्सेस, उनका जो फिजिकल कंट्रोल है, उनके जो अंदर न्यूरोट्रांसमीटर सेल्स हैं, दे आर नॉट वर्किंग एट देयर बेस्ट. इसकी वजह से वो और ज्यादा परेशान. बहुत सालों से जो लगातार रिसर्च चल रही थी बिहेवियरल डिसऑर्डर्स ऑफ चिल्ड्रन, उसमें बच्चे जो हैं विद ADHD कंडीशन, ये सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा है जब से स्क्रीन्स आई हैं. जीन्स का, हेरिडिटी का इसमें रोल रहा है डेफिनेटली, लेकिन उसके सिम्टम्स और सिनेरियोस चेंज हो गए हैं विद चेंजिंग एनवायरमेंटल ट्रिगर्स. तो ADHD इस वक्त मोस्ट कॉमन जो डिसऑर्डर या बिहेवियरल डिसऑर्डर का कारण माना जा सकता है बच्चों में. तो अभी कौन कौन से डिसऑर्डर बच्चों में कॉमनली हमें दिखते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे. जैसे मैंने आपको बताया ADHD, मैं बार बार इस चीज को क्यों हाईलाइट करती हूँ, बिकॉज इन माय प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इन ऑल माय कैपेसिटीज सिंस ए ईयर, मैक्सिमम केसेस जो एज ग्रुप ऑफ 8 से लेके 17 या 18 तक मेरे पास आ रहे हैं, मैक्सिमम यंगस्टर्स के केसेस जो हैं, दे हैव बीन डिटेक्टेड विद ADHD. इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? डिसऑर्गेनाइजेशन है, बच्चा क्लास में फोकस नहीं कर पा रहा है, इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो कर पा रहा, कह रहे हैं बट बच्चा इंफॉर्मेशन प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा.
वो टिक के नहीं बैठ पा रहा, उसका इम्पल्सिव बिहेवियर है, उसको लर्न कर लिया उसने, रिटेन कर लिया, रिकॉल नहीं कर पा रहा इंफॉर्मेशन, वो टेस्ट में टेक्सचुअल या डिटेल इंफॉर्मेशन, सब्जेक्टिव टाइप इंफॉर्मेशन लिख नहीं पा रहा, वो छोटी छोटी बात पे रिएक्ट कर रहा है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्लास में हैंड रेज नहीं करना चाहिए था अगर मुझे आंसर नहीं आता, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसे आंसर आता है पर वो मैम से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, वो फिजिटी है, वो एक जगह से दूसरी जगह कूद रहा है क्लास में और टीचर उसको बार बार टोक रही है, पीटीएम पे मम्मा से कंप्लेन कर रही है, उसको समझ नहीं आ रहा, वो इंटेंशनली नहीं कर रहा है, हर इंसान उसको टोक रहा है, उसको ब्लेम कर रहा है, पर उसके कंट्रोल में नहीं है। सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स कॉमनली जो ऑब्जर्व्ड हैं, दे आर रिलेटेड टू ADHD। सेकेंड डिसऑर्डर जो हमारा बहुत हाईलाइटेड इस वक्त ऑब्जर्वेबल है, दैट इज ODD, दैट इज ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। ये 8 साल से भी कम बच्चों में शुरू होता है और 12-14 साल तक ये बहुत सीवियरली दिखाई दे रहा है, जिसमें बच्चे जो हैं वो शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आर्ग्यू बैक करते हैं, अनॉइंग हैं, बहुत अनॉय करते भी हैं और होते भी हैं, रिसेंटफुल हैं अपने सिबलिंग के साथ, मदर के साथ, अथॉरिटी फिगर के साथ, टीचर के साथ। हम बहुत सारी ऐसी न्यूज सुन रहे हैं कि इस क्लास के बच्चे ने जाके टीचर को शूट कर दिया, उसके ऊपर एसिड फेंक दिया, प्रिंसिपल को हर्ट करने की कोशिश की, किसी भी अथॉरिटी फिगर से वो कोई भी डिक्टेटेड इंस्ट्रक्शंस नहीं लेना चाह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ODD। और वो जब भी अपनी गलतियों के ऊपर बात आती है तो वो दूसरों को ब्लेम करते हैं, आई एक्टेड लाइक दिस बिकॉज यू डिड दिस, पर कोई सुन नहीं रहा उनको। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है इस वक्त। कंडक्ट डिसऑर्डर सुनने में थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि हम लोगों को कंडक्ट क्या सिखाया गया है, करेक्टर, कि आपका कंडक्ट दिखाता है आपकी परवरिश कैसी है, आपके संस्कार कैसे हैं, और यही बात हम पेरेंट्स को इतना ज्यादा डिमोरलाइज करती है जब भी हमारा बच्चा सोशली कहीं भी मिसबिहेव करता है, वो रिएक्ट करता है, वो ओवर एक्ट करता है, मॉल्स में, थिएटर में, किसी फैमिली फंक्शन में, किसी फ्रेंड के घर पे या गेस्ट के सामने अपने घर पे, तो तब हम इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि हम या तो खुद को ब्लेम करने लगते हैं या बच्चे को, और उसमें से मिस क्या हो जाते हैं, कारण। तो कारण पता लगेंगे तभी निवारण मतलब सॉल्यूशन हो पाएगा। ये जो कंडक्ट डिसऑर्डर है, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अबाउट ब्रेकिंग द रूल्स, और बहुत अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो करना, फिजिकल एग्रेशन में आना, इरिटेट होना, चाहे वो क्लोज रिलेशनशिप में है, चाहे वो सोशल कैपेसिटीज में है। अब जो मुद्दे की बात है कि हम इन सब चीजों को ट्रीट कैसे कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यस, बहुत सारे क्वेश्चंस के जो आंसर अब मिल जाएंगे आप लोगों को। पेरेंटल एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। आज मेरे साथ यहाँ पार्टिसिपेशन में, मेरी टीम में मेरे बहुत सारे पेरेंटिंग कोच हैं, एक बार उनके लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। क्यों विद इन 2-3 इयर्स पेरेंटिंग कोचेस की इतनी डिमांड बढ़ी और इतनी जरूरत महसूस हुई? बिकॉज कहीं ना कहीं पेरेंट्स तो हम बन जाते हैं और गूगल, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे और आपस की फ्रेंड से डिस्कस करके हमें लगता है कि हमें सब पता है, और हम क्योंकि हमें बिल्कुल पता है तो हम वो सब अपनी उस समय से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हमारे को कोई सजेशन नहीं दे सकता, हमारे को कोई टोक नहीं सकता, हमें बहुत ज्यादा इंटॉलरेंस आ गई है एज पेरेंट की। मेरी मदर इन लॉ क्या समझती है, उन्होंने ही बच्चे पाले हैं, वो क्या कहती हैं कि हमने तो अपने टाइम पे ऐसे किया था, तुम ऐसे कर रही हो। पहले क्या होता था, हम लार्ज जॉइंट फैमिलीज में और सोशल सिस्टम में बहुत सारे लोगों को देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, सीखते थे, अप्लाई करते थे, और हर एक का इन्फ्लुएंस हमारे बच्चे पे बराबर रहता था, जिससे बहुत सारी चीजें मैनेज भी हो जाती थी, रिकवर भी हो जाती थी और कुछ ट्रिगर भी हो जाती थी, बट एवरीथिंग वाज ऑन सेम थिंग। अभी सिर्फ 2 दिमाग, माँ और बाप, मदर और फादर लगे हुए हैं विद ईगोइस्टिक स्टेट, मैं बेटर पेरेंट हूँ, मैं बेटर पेरेंट हूँ, मेरा स्टाइल ज्यादा अच्छा है, मेरा स्टाइल ज्यादा अच्छा है, मुझे पता है इसको किस स्कूल में डालना है, तुम्हारी एजुकेशन क्या हुई है मेरे को पता ही है, तुम्हारी फैमिली का भी मुझे पता है, सो डोंट इंटरफेयर इन दैट, तुम आज तक कुछ नहीं बन सके, ये मैं बनाऊंगी। और अदरवाइज दूसरा पार्टनर भी ऐसे कह सकता है कि तुम पहले खुद के इमोशंस को कंट्रोल करो, बच्चे को क्या ट्रेनिंग दोगी। ये इतने नॉर्मल डायलॉग्स हैं फैमिलीज में जो बच्चे के सामने हो रहे होते हैं। तो हमारा मकसद टीचिंग या प्रीचिंग नहीं है, हर पेरेंट कोच ये कोशिश कर रहा है कि हम आपको ये सारे स्ट्रगल से निकाल सके,
कैसे बच्चों के साथ रिस्पॉन्ड करना है, कैसे ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स रखने हैं, कैसे हमें एडजस्टमेंट डिसऑर्डर से बाहर आना है पहले खुद, कैसे हमें अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है, फिर अपनी कंडीशनिंग, पेरेंटल कंडीशनिंग जो हमारी जो हमें दिया उसमें से कौन सी चीज रखनी है, कौन सी अनलर्न करनी है, कौन सी नए माहौल के हिसाब से रीलर्न करनी है। दिस इज ऑल अबाउट पेरेंटल एजुकेशन। जब भी फैमिली में कोई ऐसा क्राइसिस आता है कि बच्चे का डिफाइंड ओडी बिहेवियर है, उसको ओसीडी है, उसको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसमें अगर आप एक फैमिली स्ट्रक्चर में रहते हो तो फिर पूरी फैमिली की ट्रेनिंग होती है, उनकी एम्पावरमेंट होती है कि बच्चे को कम्युनिकेशन इंप्रूव करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में हमने कैसे हेल्प करनी है। उसमें सिर्फ 2 पेरेंट्स का रोल नहीं होता, अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कोई केयर गिवर हैं, इवन मेड्स और हेल्प्स जो हैं बच्चों की, उनके बिहेवियर का भी बहुत असर पड़ता है, टीचर्स का बहुत असर पड़ता है। और अगर बच्चा इतना मैच्योर हो गया है, 8 इयर्स प्लस है, वो खुद समझ सकता है, खुद चीजें बता सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, सीख कर सकता है, तो फिर हम बच्चे को असिस्ट करते हैं टू गेनिंग ए न्यू पर्सपेक्टिव ऑन देयर सिचुएशन। पेरेंट्स के साथ कोई कंफ्लिक्ट है, अपने साथ कोई इशू है, वो जस्ट एक्सप्रेस कर रहे किसी भी तरीके से, उसके लिए माइंड मेंटर्स के पास बहुत सारी असेसमेंट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चनियर्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जिसमें हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चे के साथ सिर्फ इंटरेक्ट करके ही चीजें निकलवा लेते हैं, उसको पता भी नहीं चलता कि हम उससे डायरेक्टली क्या पूछ रहे हैं। तो फिर हम उनके ऊपर काम करते हैं टू कंट्रोल देयर थॉट्स एंड बिहेवियर्स अकॉर्डिंग टू देयर एज, देयर इश्यूज एंड देयर एनवायरनमेंट। इसमें फैमिली की और पेरेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट साथ साथ कंटिन्यू रहती है। कुछ बच्चों को सोशल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, जो बहुत आइसोलेटेड होते हैं या बहुत एग्रेसिव होते हैं, उनका पीयर ग्रुप के साथ अच्छा जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, उन्हें हम यहाँ ग्रुप्स बना के सोशल ट्रेनिंग्स देते हैं। इससे ओटी भी बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये अलग अलग डिसऑर्डर्स के लिए अलग अलग स्टाइल में दी जाती है। कुछ बच्चों में एंगर इतना एग्रेसिव होता है कि वो जस्ट बस उनका एंगर ही कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से they are misunderstood, they are rejected, they are bullied, they are ignored by their peer group, by their teachers, by their social connections and by their parents even, और elder sibling। तो इस ट्रीटमेंट में हम फोकस करते हैं साइंस ऑफ एंगर कि क्या साइंस हैं और बच्चे को क्या चीजें ट्रिगर करती हैं, कौन सी उनके फ्रस्ट्रेशन को जो है वो फायर करती हैं, और फिर हम उन्हें डिफरेंट कोपिंग स्किल्स देते हैं, कभी पेरेंट्स के थ्रू, कभी डायरेक्टली बच्चे को। कुछ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, अदर्स जिसको हम बोलते हैं, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी है, बिहेवियरल डिसऑर्डर, उसको अपनी परफॉर्मेंस ही वो अच्छे से नहीं कर पा रहा, बच्चा बिलो एवरेज है ड्यू टू लो आईक्यू, ऑटिज्म और समथिंग एल्स, कि उसका इंटरेस्ट नहीं है उन सब्जेक्ट्स में जो उसको पढ़ने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से बिहेवियरल डिसऑर्डर्स वो दिखा रहा है, बिकॉज ही इज अनरेस्ट इनसाइड, अनहैप्पी इनसाइड, अंडरस्टूड नहीं है, वो लोगों से समझ नहीं पा रहे, तो इस वजह से उसमें वो रिएक्शंस आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आज यहाँ मेडिकेशन का रोल डिस्कस करना, क्योंकि मैंने जो ये ऑब्जर्व किया है पिछले कुछ सालों में, 13-14 साल से लेके 21 साल तक के लोगों में जब भी प्रॉब्लम आती है, पेरेंट्स सबसे पहले साइकेट्रिक हेल्प लेते हैं, दे जस्ट रश टू हॉस्पिटल विदाउट नोइंग कि जरूरत है कि नहीं है। और उसका मेजर रीजन जो मैंने समझा है अपने बाकी साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड से भी डिस्कस करके, अपनी फ्रेटर्निटी से डिस्कस करके, कि उसमें एक स्टिग्मा रहता है कि किसी से जाके बात करेंगे, किसी को बताएंगे, कोई हमारे को जज करेगा, हमारी पेरेंटिंग को जज करेगा, हमारे बच्चे को लेबल करेगा, उसके स्कूल में पता चल जाएगा, तो चुप करके मेडिसिन ले लो, मेडिसिन से बिहेवियरल कंट्रोल हो जाते हैं, डेफिनेटली हो जाती है, बट 90% केसेस में मेडिसिन की जरूरत नहीं होती, जस्ट बात करने की जरूरत होती है, एक काउंसलिंग की जरूरत होती है, एक टॉक थेरेपी की जरूरत होती है, एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, एक राइट कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, एक एम्पैथेटिक लिसनिंग की जरूरत होती है, बस। बहुत सारी साइकोटिक डिसऑर्डर हैं जो एक्सट्रीम स्टेजेस पे पहुंच जाते हैं, उनमें मेडिकल इंटरवेंशन के साथ एक प्रॉपर मेडिकल डायग्नोसिस के बाद हम मेडिसिन के लिए सजेस्ट करते हैं। लेकिन अगर बिना वजह के मेडिसिन शुरू हो जाए तो आई हैव सीन मैनी यंग केसेस जिनको अलग अलग तरह के हेल्थ और मेंटल डिसऑर्डर
इश्यूज हो गए और सिर्फ मेडिसिन लेने की वजह से। I have treated such people with lot of struggle later stages पे, और 12 14 साल से दवाई खा रहे हैं। दवाई खाने से क्या होता है कि सिम्टम सप्रेस हो रहे हैं, बिहेवियरल सिम्टम सप्रेस हो रहे हैं, लेकिन रूट कॉजेज पे काम नहीं हो रहा। तो जैसे ही दवाई बंद होती है फिर से वो शुरू हो जाते हैं। तो ये इसीलिए बोलते हैं कि दवाइयां लग जाती, क्योंकि हम लगा रहे हैं। हम मेजर जो एक रीजन है, जो एक मेजर सोर्स है, उसके ऊपर काम करने की कोशिश नहीं कर रहे, उससे हम आंख चुरा रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं